We are now live, and I hope everything is good. Yeah. So, Thank you, Shilpi, for inviting me again. most welcome. So, let's start the session. So, hello everyone, and welcome to Live Wabi Sabi Life podcast, a space where we embrace the imperfect, the incomplete, and the deeply human parts of our journey. I am your host, Shilpi Shah, and today's conversation is one that every parent, caregiver, and even every inner child needs to hear. So, we often say children are our responsibility, but what if I told you that children are actually your mirror? And what if parenting is less about correcting a child and more about healing the parent? Today, I am in conversation with someone who has beautifully redefined what conscious parenting means. She reminds us that before we parent a child, we must parent our own fears, our own triggers, beliefs, and wounds. So please join me in welcoming Neera Paritosh, the founder of Parenting the Parent, a guide, a healer, international coach, and a powerful voice for awareness based parenting. So, Neeraji, welcome to Live Wabi Sabi Life, and I am so grateful to have you here. So, how are you feeling today? Thank you so much. I'm feeling so, rather, I should say, overwhelmed in being in your show because, I think you have given us that limelight because you added my name in the, say, one woman in those 100 influential women of 2025. So I feel so good that my name was added in that, and you did everything. Shilpi, I'm so thankful to you. Our pleasure, our pleasure. Thank you for being here, Neeraji, and thank you for your kind words. So, people often say things like, I can't leave my job because I have some kind of home loan or car loan. I'm trying to build the gist of, what we are going to talk today, Neeraji. And you have also said that, sometimes people say that my family is not giving me, share of property I deserve, or, people are overwhelmed with n number of tasks. Different situations, but same emotion, a sense of being caught up in a loop. And when we are trapped in these loops, peace disappears. We stop showing up as calm parents or present partners or balanced individuals. And life becomes a series of reactions instead of conscious choices, I guess. So you often say, Neeraji, that when a person is peaceful and calm within, they can handle any relationship, whether as a parent, as a child, as a spouse, or professional, with grace and clarity. So my first question to you, Neeraji, is, when life feels like in a loop, we cannot escape due to money or family expectations. So, where should a person begin? What is the first inner shift that helps us move from feeling trapped to feeling empowered? Okay. Shilpi, before that, I just want to say that only your static photo is coming, like we used to conversate, and you also. Now Sorry. it's okay. Now it's okay. 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 First of all, you said that people are caught in a loop. You're very right, because wherever we go in a social gathering, or when we sit in the staff room, or in a group of friends, every time everybody has some or the other story to tell. And the story is like, I caught up in this job. मैंने तो सोचा था 2-3 साल जॉब करूंगा, उसके बाद I will follow my passion. And the other person says something, my family is very rich, but I'm 40 now, and till now they have not given me the share in property. Mm-hmm. ऐसे करके हर एक के पास एक प्रॉब्लम होती है. Now every time the same problem they are discussing, it means first step is that they have not accepted that it is their responsibility, or they are responsible for this problem. For Mm-hmm. example, if they say, I have taken a home loan, or I have taken a car loan, and the EMI goes, and I cannot leave the job. So किसी ने उनको क्या जबरदस्ती किया था कि आप कार लोन लीजिए, आप होम लोन लीजिए? किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था. इसका मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला अभी तक उन्होंने. So, first of all, they will have to accept this, that they are responsible for this situation. And the Mm-hmm. second thing is, अगर वो responsible है problem के लिए, तो वही तो solution लेंगे.
So then they will have to take the responsibility that yes, I will solve it. अगर ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट दे विल हैव टू एक्ट नाउ। तो जो भी आपने पढ़ा, आपने 10th पढ़ी, अपने 12th पढ़ी, तो उसमें यही होता था ना, एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता था एंड यू यूज्ड टू हैव अ डेट ऑफ एग्जाम, और उसी एग्जाम डेट पे आपको एग्जाम देना होता था वो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस प्रिपेयर करके। अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया तो आपके 80-90% आ गए, आपने नहीं प्रिपेयर करा तो आपके 30-40% आ गए। सो इट मीन्स देयर ऑल्सो यू वर डूइंग कॉन्शियस एफर्ट्स कि आपने सोचा अच्छा कल का टाइम टेबल ये है, कल मैं 5:30 उठ जाऊंगा, 6 o'clock आई स्टार्ट स्टडिंग, और मैं फ्रॉम 6 o'clock to 8 o'clock आई डू इकोनॉमिक्स और वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैव। तो आपने कॉन्शियस एफर्ट्स करे ना, तो अभी भी तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। दुनिया में कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी साथ में ना बनी। सो एवरी लॉक हैज अ की, तो आपको वो की ढूंढनी है, आपको वो की बनानी है। सो डेफिनेटली जैसे ही की मिल जाएगी यू विल बी इन अ बेटर स्टेट। Wow, और interesting. I have this idea of every lock has a key. I mean, key is already designed in your minds, I guess, right? हाँ 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 हाँ। So, Wow. in fact, people have this thing in their mind that अब situation block हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? They will have to, form एक होता है हम इंसिडेंट्स के आगे झुक जाते हैं, जो भी हो रहा है लाइफ में, ठीक है, अगर हो जाए, रोने वाला हो गया तो हम रोने लग गए, खुश होने वाला हो गया हम खुश हो गए। एक होता है यू आर डिजाइनिंग सम एफर्ट्स कि वो जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आए। सो यू विल हैव टू डिजाइन दैट रिजल्ट। आप हमेशा ये नहीं कह सकते हर जगह अब मैं इस लूप में फंस गया हूँ, मैं इस लूप में फंस गया हूँ। एक और प्रॉब्लम जो होती है आपने, चलो अभी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि आप उस लूप में कैसे फंस गए, लेकिन आप एक लूप में फंस गए और उसके बाद बिकॉज यू आर इन दैट लूप यू गेट एंग्री, और कुछ लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, कोई ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब एक और लूप, फिर आप घर में चिल्लाने लग गए एंड यू स्पॉइल द एनवायरनमेंट ऑफ द होम, एक और लूप, एक और लूप। तो आपने एक लूप में आप थे और 10 लूप आपने और क्रिएट कर दिए। तो इसका मतलब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरी प्रॉब्लम में गिरना कैसे हो गया? आपने सॉल्यूशन ढूंढा ही नहीं। Hmm. Wow. I mean, this is so different. I mean, हाँ हाँ this is something like the topic which we are discussing today is you हाँ can have whatever you want. So the हाँ first हाँ thing हाँ which is coming out from this conversation is I mean, don't keep on falling on loops, right? हाँ 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 हाँ। तो वो खुद Wow. ही करना पड़ेगा, खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि इस लूप से बाहर कैसे निकलना है विदाउट एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट लूप। आप बिंज वॉचिंग करने लगे, अच्छा इसकी 7 एपिसोड्स हैं, इसके 8 एपिसोड्स हैं, मैं तो एक रात नहीं देख लूंगा। क्यों देख लेंगे? आपने आपको जो प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन निकालिए ना। अच्छा, और दूसरी चीज हम क्या कहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, हम हमेशा जो भी लोग हमसे सजेशंस लेते हैं तो फर्स्ट सजेशन ये होता है कि आप उसको लिख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आप कार चाहते हैं, आप एक घर चाहते हैं, आप बहुत अच्छा घर चाहते हैं, बहुत अच्छी लोकेलिटी में चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं ना, आप वो लिख लीजिए। आप उसको उसका सॉल्यूशन कैसे, मेनी पीपल हैव डन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी मैनिफेस्टेशन, जिसमें वो एक सिंपल सा रूल वो बताते हैं कि आप ना सिंपली आप पहले आप सोच लीजिए, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो उसमें वो एक्ट वर्ड आता ही नहीं है। तो एक्ट वर्ड आपको याद रखना है। आज तो ठीक है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए। अब बिलीव की प्रॉब्लम आएगी। बिलीव का मतलब आपके माइंड में कुछ फँसा हुआ है। जैसे आपके माइंड में फँसा हुआ है कि मैं तो कभी अमीर हो ही नहीं सकता, मैं तो गरीब ही रहूँगा, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। अब आपके माइंड में जो बिलीफ है ना, वो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास है, आपको ही चेंज करना पड़ेगा। बिलीव हो गया और उसके बाद एक्ट। आपने प्लानिंग क्या करी कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इतने टाइम में इतने रिसोर्सेज के साथ कैसे अचीव होगा। जैसे एक सिंपल सा यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी अभी कि समबडी सेड कि I'm कॉट इन दिस जॉब, मेरी ईएमआई जाती है कार की, मेरी ईएमआई जाती है हाउस लोन की, तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो हमने कहा ठीक है, आप किसी दूसरी जॉब को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें यू हैव से डबल सैलरी और ह्यूज सैलरी। जो आपने सोचा था 10 15 20 साल में लोन खत्म होगा,
वो 5 साल में ही खत्म हो गया बिकॉज़ यू हैव अ ह्यूज सैलरी। जैसे ही हमने ये कहा रादर दैट पर्सन स्टार्टेड फाइटिंग विद अस। अच्छा आपको लगता है 1 मिनट में हो जाएगा? नहीं होगा, ये हमें भी पता है। इट मीन्स यू विल हैव टू पुट इन कॉन्शियस एफर्ट्स। आपको पता चल गया कि आपको ये कोर्स करना है, आपको ये डिग्री लेनी है। इंटरनली आपको ऐसे बेटर होना है, एक्सटर्नली आपको ऐसे बेटर होना है। आप बेटर पोज़ीशन में होंगे, ओनली देन यू विल अप्लाई फॉर दैट जॉब ना। तो आपको Mhm. खुद को बेटर करना है। लेकिन आप अगर So it एफर्ट्स means, करना ही नहीं चाहते, तो कैसे होगा? अच्छा, so it means हाँ, shifting from हाँ, limitation to possibility, है ना? Like I mean, हाँ, 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 people हाँ, generally believe that हमें freedom चाहिए, we need peace, we हाँ, need हाँ, success, we need better relationships. But deep inside, they also believe it isn't. If they believe that it isn't possible for them, हाँ, it हाँ, हाँ, won't be. हाँ, So, in your हाँ, नहीं, experience, what is this biggest inner blockage that stops people from achieving what they truly want, हाँ, हाँ, even if the हाँ, 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 opportunity is right, in front of them? हाँ, 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 हाँ। The opportunity is in front of them and they are not ready to receive it. रिसीव का मतलब होता है, एक सिंपल सी बात होती है जब हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, वाह यू लुकिंग सो नाइस टुडे, कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है, और आप वो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं ले सके। आपने कहा ओह मैंने तो ये वहां से खरीदी थी, जनपथ में 100 रुपीज की मिल रही थी, फिर एक ही बार धो के खराब हो गई, बिल्कुल कपड़ा बकवास है ये वो। आपको सिर्फ थैंक यू बोलना था उसके लिए, एक कॉम्प्लीमेंट तक तो ले नहीं सकते। हाउ विल, एंड नाउ यू आर ड्रीमिंग कि मुझे वो 100 करोड़ की ये जॉब मिल गए, 300 करोड़ रुपीज मुझे यहाँ मिल जाए। कैसे मिल जाएंगे? पहले खुद को तो डेवलप करो। तो जब हम ये मीन्स लॉस करेंगे, जो भी हमें हाँ हाँ मिले हम उसे अच्छे से रिसीव करें, स्पेशली अगर वो हाँ, कॉम्प्लीमेंट हो तो हमारे लिए उसमें कुछ वो, अच्छा कहा हाँ जा हाँ रहा हो। हाँ हाँ हाँ, उसमें ना जब हम लॉ ऑफ यूनिवर्स करेंगे, तो उसमें एक होता है लॉ ऑफ रेजोनेंस, कि आपको हुँ, वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको वो हुँ, दिया जाएगा जिसके आप काबिल हो। तो आप हुँ, काबिल बनेंगे ना उसके, जो आपको चाहिए आप उसके काबिल बन जाइए, आपको आराम से वो मिल जाएगा। तो उसके मतलब लिए फिर मेंटली भी तो, हाँ यूनिवर्स लुक्स फॉर एनर्जीज़, राइट? वो द काइंड ऑफ हाँ एनर्जी हाँ यू हाँ, गिव तो इनटू द आपकी यूनिवर्स। एनर्जी, हाँ वाइब्रेशन जरूर वैसी हो जाएगी, हुँ, 100% वैसी हो जाएगी। हुँ, जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, या आप वैसे भी जहाँ भी बोलते हैं, मैं तो पागल हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिल सकता, मैं तो हूँ ही ऐसा, जब आपने ही अपनी बुराई कर दी, मतलब आपके आपकी अपनी नजरों में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द पीपल टू रिस्पेक्ट यू? जब आप ही हुँ, अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कोई कैसे कर देगा रिस्पेक्ट? तो आपको हुँ, एक्सपेक्टेशंस दूसरे से हैं, लेकिन खुद ही तो वो पूरी करनी पड़ेगी। पहले खुद तो पूरी कर लो, अपनी रिस्पेक्ट तो कर लीजिए पहले। हुँ, हुँ। ओह! इंटरेस्टिंग। और ये जो लूप होता है नीरज जी जिसकी हम बात कर रहे हाँ, हैं, तो हाँ। दिस हाँ, लूप हाँ, इज़ हाँ। आउटसाइड ऑफ अस, है ना? या इट हाँ, इज़ हाँ। फर्स्ट क्रिएटेड इन आवर माइंड, सो हाउ कैन हाँ, अवेयरनेस हेल्प अस ब्रेक दिस लूप? हाँ, हाँ, हाउ हाँ। कैन वी ब्रेक अ, दिस लूप? थोड़ा-सा हाँ, इसके बारे में बात हाँ, करते हैं। हाँ। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बड़े हेवी वर्ड्स बोले जाते हैं, एनलाइटनमेंट, या बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, अवेकनिंग, ये सारे वर्ड्स बोले जाते हैं। तो हम वो वर्ड्स नहीं लेते, हम सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं, एजुकेशन। जो हुँ, आपको हुँ। प्रॉब्लम है, हम एजुकेट कर देते हैं आपको कि ये सॉल्यूशन है उसका। बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। बस आपको जो बताया गया है, आपने उसके हिसाब से तो चलना है। दिस इज़ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म। लोग सोचते हैं अच्छा वही जो हमने एकेडमिक्स पढ़ा है ना, बस वही एजुकेशन है। एजुकेशन में तो इतना कुछ और आता है, अभी उसको भी छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब एजुकेटिंग द पर्सन अबाउट द प्रॉब्लम। तो हमने उसको एक सिंपल सा एक वो बताया, टूल बताया, एंड दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, जो हमने पिछली बार भी बात की थी। सबने बोला हुँ, हाँ, हाँ, हमने ग्रैटिट्यूड वर्ड सुना हुआ है। हाँ, बड़ा-बड़ा कॉमन है, हम सुन लेते हैं। थैंक यू बोलना है ना? अच्छा मैं बोल दूँगी। जब मैंने पूछा कि अच्छा आप 10 चीज़ों को तो रोज़ थैंक यू कर सकते हैं ना, आप किसका करेंगे? तो आपके उनके पास 6-7 चीज़ें भी नहीं थी थैंक यू बताने के लिए। तो ग्रैटिट्यूड का थोड़ा-सा डिटेल और बता देती हूँ। ग्रैटिट्यूड छोटी से छोटी बात का भी, आप सोने गए हैं, आप तो रोज़ उसी कमरे में सोने के लिए जाते हैं, वहाँ बेड पड़ा है। आपने कहा अच्छा 10 साल से मैं इसी बेड पे सो रहा हूँ, मैं इसका थैंक यू करूँ क्या? आपके पास 10 साल से बेड है, लोग ज़मीन पे सोते हैं। तो इसका मतलब आपको वो भी थैंक यू करना था। अब नहीं हुँ, नहीं मानना चाहते भगवान को, मत मानिए, थैंक यू भगवान मत बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे बेड दिया, बेड पे मैट्रेस भी है, उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं, बेड पे चद्दर भी है, उसके लिए बोल सकते हैं, देन यू हैव क्विल्ट्स, देन यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स। थैंक यू बोलने लगे ना और एक दिन में ये सब करने लगे, तो मेरे ख्याल से पूरी नोटबुक भर सकती है।
तो छोटी से छोटी बात का थैंक यू करना है। दूसरी चीज हम्म, है थैंक यू राइटिंग में करना है। ये नहीं कि हाँ मेरे पास लैपटॉप है मैं अभी उस पर टाइप कर देता हूँ, नहीं, पेन और पेपर से करना है। पेन और पेपर से करने का मतलब मैं उसकी बैक की साइंस में मैं नहीं जा रही। सिर्फ ये होता कि जो चीज हम लिखते हैं आर ब्रेन गेट्स मैसेज कि हाँ मुझे ये अचीव करनी है, तो इसलिए लिखना होता है। तो आपने वो चीज लिख ली, छोटी से छोटी बात, और आपने लिख ली। और तीसरा चीज होती है जो चीज आपके पास है पहले आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जैसे आपके पास एक कार है, अब आपको BMW चाहिए, और आपने कहा वो मेरे पास सड़ी सी कार है, मैं नहीं चाहता, इसमें 10 साल पुरानी कार है, ये है इसमें वो है। आपने 10 बुराइयां उसकी कर दी। 10 साल वो कार आपको आपके ऑफिस तक ड्रॉप करके आई, ये 10 साल आपने उसके साथ बिताए हैं। तो जिस चीज की आप बुराइयां करेंगे वो चीज आपको कभी नहीं मिल सकती है। आपके पर्स में एक 10 रुपीज का नोट है, एक 50 रुपीज का नोट है, आप आके घर में फेंकने लग गए पेरेंट्स के सामने, क्या ये कोई पैसे हैं, मैं क्या करूं, 10 रुपए 50 रुपए कुछ नहीं आता। अब आपने जो एक बोलते हैं ना लक्ष्मी का अपमान कर दिया, अब आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। तो जो आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट करना। दूसरी चीज, जो जो चीज आपको चाहिए, अब वो आपके किसी फ्रेंड ने ले ली, आपके किसी नेबर ने ले ली, नाउ यू आर फीलिंग वेरी जेलस कि अच्छा ये तो पता नहीं अपने आप को क्या समझते, एंड यू स्टार्टेड स्पीकिंग नेगेटिव अबाउट देम। इनके पास पता नहीं कहाँ से ये ब्लैक मनी होगी, ये पैसा पता नहीं कहाँ से चुरा के लाए हैं, कैसे इन्होंने एक कार ले ली। आपने जब तक उनके पास कार नहीं थी यू वर नॉट सेइंग एनीथिंग। जब उन्होंने कार ली तो आप उनसे जेलस हो गए। इसका मतलब सारी बुराई आपने किसकी की? कार की। अब आपके पास कार कभी नहीं आएगी। तो नीरज जी, जैसे हाँ ये हाँ जितने भी एग्जांपल्स आप दे रहे हैं, these are so relatable when you say that हाँ हाँ if you हाँ think of gratitude, so if you हाँ start हाँ doing gratitude, then there are n number of things that we should be grateful for. And हाँ हाँ I wanted to tell you that recently I went out somewhere to distribute some हाँ of the हाँ blankets. And when I हाँ हाँ saw the condition of people out there, then I हाँ realized that there is so much to be grateful हाँ for. हाँ Grateful for, first सच and में foremost, grateful to be born, in a in हाँ grateful to be born to इन my parents, because we could be हाँ रियली when रियली it comes to birth, you हाँ could be born anywhere, but हाँ I mean, एनीवेयर God gave you this privilege that you are born in India, हाँ then हाँ you have kind of हाँ parents. मतलब gratitude शुरू करें तो from the very beginning we can start with this practice. This is so wonderful and हाँ so relatable. Now please go ahead. हाँ, हाँ बस बस एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि आपने बोला था ना 30-40 मिनट्स में हमें एंड भी करना है। तो ये हाँ, जो हाँ। हमने ग्रैटिट्यूड की बात की ना, एक और चीज समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं, एक होता है विजिबल रेल्म, एक है हुँ, इनविजिबल रेल्म। विजिबल हुँ, रेल्म का मतलब जो चीज आपको दिख रही है कि हाँ मुझे हुँ, कार चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आपने जो भी लिस्ट करी, तो अल्टीमेटली दीज आर टेंजिबल थिंग्स। तो आप फ्यूचर हुँ, में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन हुँ, दूसरा होता है इनविजिबल रेल्म, जो हमने हुँ, अभी बात की ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड इज अ पार्ट ऑफ इनविजिबल रेल्म। वो कहीं हुँ, नजर नहीं आएगा, नीदर दैट इज मेजरेबल नॉर कैन बी सीन। तो हुँ, आपने जो भी कहा, आपने कहा मैंने तो आज 10,000 ग्रेटिट्यूड लिखे, मैंने आज 1,000 ग्रेटिट्यूड लिखे, आपने जो भी लिखा, अब उसका असर कब होगा और कहाँ होगा ये हमें नहीं पता। तो इनविजिबल रेल्म में इतना कुछ होता जाएगा, बस वो गो साइड बाय साइड। ठीक है, तो आपने ऐसे, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आज आप ऑफिस गए, आपने रास्ते में रेड लाइट थी या जो भी थी, आपने साथ में जो कार में खड़ा हुआ था उसको यूज्ड अब्यूजिव टर्म्स कि आप कैसे चला रही हो या जो भी था, एंड देन यू वेंट टू ऑफिस। इस पे चिल्लाए, उस पे चिल्लाए, आप उसमें ऑफिस से बाहर निकले, आपने जो भी डॉग बाहर बैठा होता आपने जोर से उसको लात मारी। अब आप वो घर आने लगे, तो घर आके आज रेफ्रिजरेटर खराब है, टीवी भी खराब है, ये भी, तो हम ये नहीं कह सकते बिकॉज यू बिहेव्ड इन दैट मैनर दैट इज व्हाई दिस थिंग हैपेंड, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है ही नहीं ना। तो वो लॉजिक नहीं लगा सकते वहां पे, लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है 100%। आप जो भी जो लोग है, जैसे कर्मास की बात करते हैं, तो जो पॉजिटिव कर्मास और नेगेटिव कर्मास वो भी तो यही है ना, कि आप पॉजिटिव कर्मास रख रहे हैं, पॉजिटिव कर्मास रख रहे हैं, क्योंकि आप एक भी दिन बुरा नहीं कर रहे, लेकिन उसका बेनिफिट आपको पता नहीं कब मिल जाएगा। हुँ, हुँ।
Wow, interesting. Or Neeraji, when it comes, हाँ, I हाँ। mean, these are all about desires, and when it comes हाँ, to हाँ। conscious action, if achieving हाँ, हाँ। whatever we हाँ, हाँ। begins within, now we move from awareness to action. So, what is हाँ, one हाँ। daily practice or mindset shift? I mean, according to you, that can help a person start seeing real, changes in their हाँ, money हाँ। or relationship or self worth. Would you like to brief us something about this? अच्छा, असल में ना ये तो बहुत लंबा-चौड़ा कोर्स कोर्स होता है। फिर भी Oh, मैं अच्छा, अच्छा. सिर्फ़ जो जो ईज़ी समझ में आ जाता है ना वो बता देती हूँ। तो Sure. एक ओह ओह! सॉरी। इ Neeraj ji, are you there? सॉरी। हाँ, 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 ये ना बीच में ही चला गया था तो हुँ, लेट मी से दैट। तो वो हुँ, बड़ी ईज़ी जैसे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको समझ में आ गई, ठीक है? हुँ, अब हुँ, ग्रैटिट्यूड आप ये देख लीजिए पहली बात तो करना क्यों है? ये रीज़न समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब आप जैसे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं दैट देयर वर 2 पीपल लिविंग इन द शेयरिंग द सेम रूम और वो दोनों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए। दोनों ने हुँ, हुँ, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करा। हमने कहा एक हुँ, ना उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे आपने कहा 21 डेज़ और 40 डेज़ तो 21 डेज़, 40 डेज़ सबसे ज़्यादा वो कॉमन होते हैं कि आपको हुँ, 21 डेज़ में असर दिखना शुरू हो जाएगा और अगर आपने 40 डेज़ में कर लिया, तो काफ़ी लोगों को अचीव भी हो जाता है वो। हुँ, लेकिन दोनों में से एक को अचीव हो गया और एक को नहीं हुआ, तो इसका भी तो कुछ रीज़न होगा ना। तो हुँ, इसका रीज़न क्या है कि आप अभी जितनी मर्ज़ी साल के आप 30 इयर्स के हैं, 40 इयर्स के, 50 इयर्स के हैं, तो 30, 40, 50 इयर्स भी तो आपने कुछ किया होगा ना। आपने कुछ हुँ, पॉज़िटिव कर्म भी किए हुए हैं, कुछ नेगेटिव कर्म भी किए हुए हैं, तो उसका भी तो इम्पैक्ट आएगा। तो सपोज़ पॉइंट ए इज़ योर ऑब्जेक्टिव and हुँ, according to your previous karmas, you are at point B and your friend is at point Z. अब हुँ, अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आना तो बहुत आसान है, आप फटाफट आ भी गए। लेकिन अगर वो ज़ेड पॉइंट पे है तो उसको टाइम लगेगा ना आने में। हाँ, तो हाँ, नाउ यू गॉट द कार हुँ, एंड द पर्सन स्टार्टेड फीलिंग जेलस और वो आपके लिए पता नहीं क्या-क्या नेगेटिव बोलने लग गया। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, जैसे और बोलते हैं डिमोशन होता जाता है। नाउ वो तो ज़ेड पॉइंट पे तो ऑलरेडी था, ये तो हमने बनाया हुआ ना ए टू ज़ेड यूनिवर्स की क्या लैंग्वेज है वो तो हमें नहीं पता ना। तो वो और डिमोशन और डिमोशन और डिमोशन इतना डिमोशन हो जाएगा कि अब उसको ऑब्जेक्टिव नज़र भी नहीं आएगा। वो उसकी आँखों से ही हुँ, ओझल हो गया। तो आप क्या करके पॉइंट एस फिर पॉइंट और उससे पहले पॉइंट बी तक आ जाएँगे, उसके लिए क्या एफर्ट्स करने हैं। उसके लिए है वो जो 21 डेज़ का हम कह रहे थे, मिनिमम हुँ, होता है 108 टाइम्स। 108 अच्छा, टाइम्स आपको ग्रैटिट्यूड करना ही पड़ेगा और वो भी हुँ, लिख के। हुँ, और 108 टाइम्स अलग चीज़ों का है। तो उसमें एक सिंपल सी चीज़ भी हो सकती है, आपको कोई हुँ, पुरानी याद है, कोई पेरेंट्स ने कुछ तो करा ही होगा। आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वो तो उनके तो एफर्ट्स ही थे। तो उन्होंने हुँ, आपको बेस्ट स्कूल में डाला, उन्होंने अपने हाथ से खाना खिलाया, वो रोज़ आपको स्कूल छोड़ने जाते थे, आप बीमार हुए। तो उसमें जैसे इंडिविजुअल पर्सन को ले लेके अगर आप ग्रैटिट्यूड लिखने बैठे ना, तो आपको 108 लिखने में मुश्किल नहीं होगी। और उसके बाद जो हम बोलते हैं, आपकी लाइफ में आप इतने लोगों से मिलते हैं, अब तक पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों से मिल चुके होंगे। तो आप थैंक यू कहना चाहें, बुराइयाँ करने में तो मतलब हम शेर हैं। मुझे अभी किसी बुराई करने को कह दीजिए मैं पता नहीं पूरा नॉवल लिख सकती हूँ उसपे। लेकिन अगर अब मुझे किसी की अच्छाई करने को कह दी जाए तो मैं ढूँढना पड़ जाएगा, ओहो! 2 अच्छाइयों के बाद और कोई मिल नहीं रही। अच्छा, मैं एक हाँ। एक हुँ। कोट करना चाहती हूँ नीरज जी, ये चीज़ ना एक हाँ, हाँ। पेंटिंग के लिए भी है। आई हैव रेड समवेयर कि हाँ। किसी ने एक पेंटिंग टाँग दी थी और उसपे ये लिखा था कि इस पे जो भी गलतियाँ हैं आप उसपे टिक कर दो। तो इन द मॉर्निंग ही हंग दैट पेंटिंग एंड व्हेन ही केम बैक इन द इवनिंग मतलब पूरा पेंटिंग पे टिक, 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 टिक था ही था, हाँ। है ना? तो अच्छा। उन्होंने फिर सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम उन्होंने ये करा कि इस पेंटिंग में जो भी गलतियाँ हैं आप उसे ठीक कर दो। ठीक है? उसका हाँ, सजेशन हाँ, बता हाँ। दो, उसको ठीक कर दो। हाँ। तो जब वो इवनिंग में आया तो उसपे कोई कुछ सजेशन नहीं था, कुछ नहीं था। तो मतलब व्हेन इट कम्स टू हाँ, रिफ्रेमिंग हाँ। समथिंग को ठीक करना हो, कुछ करना हो, तो पीपल वोंट हैव आइडियाज़। बट व्हेन इट कम्स टू हाँ, हाँ। गलतियाँ निकालनी है, हाँ, मिस्टेक्स बुराई करनी निकालनी है, तो क्रिटिसिज़्म तो वो तो हाँ, ऐसे मिनटों में हो जाता है।
जैसे जो हम दोनों बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों ने कितना टाइम निकाला, बिकॉज़ हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है कि हम लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। जो इतना सारा कुछ नॉलेज है, मुझे ऐसे ही तो नहीं आ गई होगी और पढ़ के और फॉर द पास्ट 34 इयर्स आई एम टीचिंग, और 50 इयर्स में मैंने जो भी सीखा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि और थोड़ा-थोड़ा दूँ कि लोगों को समझ आए। बिकॉज़ आई फील इफ यू गो एवरी ईच एंड एवरी नॉलेज इन वन गो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो मैं थोड़ा-थोड़ा देना चाहती हूँ कि उनको समझ भी आ जाए। सो हमारी तो इंटेंशन इससे भी तो है इससे ना, तो ऑडियंस एफर्ट्स लग ऑडियंस रहे हैं को ना। भी, ऑडियंस नहीं, ऑडियंस whosoever is listening, please be aware हाँ। कि we will be coming up with another episodes as well. So Neeraj is trying to announce. तो एक एपिसोड में सारा आपको भले ही सॉल्यूशंस ना मिले, बट देयर विल बी अनदर एपिसोड्स टू कीप, सो कीप एन आई ऑन अपकमिंग एपिसोड्स एज वेल. या नीरज जी थैंक प्लीज यू सो कंटिन्यू. मच शिल्पी। आपने अगर वो समराइज़ करना है तो मुझे लगता है आज आज ही हमने बहुत सारी बातें कर ली। तो आप समराइज़ भी कर सकते हो। अच्छा. Anyways, कोई नहीं नीरज जी, we ठीक will है? summarize, I mean, as we go. So, but today's conversation, Neeraj ji, has beautifully reminded us that when it comes, when you think to come out of the loop we are stuck in, whether it is money, relationship, or हाँ, हाँ। expectation, conscious efforts is non-negotiable. And और जो आपने कहा और उससे gratitude. पहले पहला फर्स्ट स्टेप है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। मैक्सिमम True. लोग तो ये मानते ही नहीं। आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, हर कोई कहता है मैंने कहाँ गलती की? मेरी क्या गलती है? वो दैट पर्सन इज़ रिस्पांसिबल, क्योंकि ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। दैट पर्सन इज़ रिस्पांसिबल, मेरे पापा ने मुझे वो कोर्स नहीं कराया, मेरी मम्मा ने ऐसे करा, मेरे पड़ोसी ने ऐसे कर दिया। आपके पास तो हज़ार लोग हैं ब्लेम करने के लिए। लेकिन फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस, कि हाँ, गलती हुई है और उसमें मैं रिस्पांसिबल हूँ। अब मेरी वजह से ये वाली प्रॉब्लम हुई है, मैं ही इसको सॉल्व करूँगा। सेकंड स्टेप आता है कॉन्शियस एफर्ट्स। अब आप भाग नहीं जाएँगे, ओह अच्छा मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, कौन करेगा सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी ना, कि असल में ग्रैटिट्यूड करने के आप पूरा दिन में कभी भी ग्रैटिट्यूड करते रहो। लेकिन रात को सोने से पहले चाहे आपने 5 ग्रैटिट्यूड लिखी और सुबह उठने के बाद, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 3:30 टू 5 या 5:30 भी कुछ लोग कहते हैं। इतने टाइम में होता है। अब आप इतनी प्रॉब्लम में फँसे हुए थे, तो आप 4:30 उठो ना, आप 5 ओ क्लॉक उठो ना, आप ग्रैटिट्यूड करो। मैक्सिमम पीपल से मैं तो उठ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। व्हाट डज़ इट शो? दैट दैट पर्सन इज़ हैप्पी इन दैट लूप। जैसे हम वो बात करते हैं ना, पंछी पिंजरे में बंद है, तो वैसे तो वो पूरा दिन रोता रहता है, हमें फ्रीडम नहीं है। लेकिन अगर उसको पिंजरे से ही प्यार हो जाए, तो आप पिंजरा खोल भी दीजिए, वो बाहर नहीं आएगा। सो सिमिलरली पीपल आल्सो लाइक द सिम्पैथी ऑफ अदर पीपल। ओहो! बेचारा, आज इसके साथ ये हो गया है, आज इसके साथ ये हो गया, उनको सिम्पैथी अच्छी लगने लग जाती है। वो सॉल्यूशन चाहते ही नहीं है। तो आप जितना मर्ज़ी बोल लीजिए, हम जितना मर्ज़ी डिस्कशन कर लें, हम मेहनत कर लें, अच्छा पहला स्टेप ये बताते हैं, सेकंड स्टेप ये बताते हैं, करना तो उनको ही पड़ेगा ना, एक्शन तो उनको ही लेना है ना। तो अगर नहीं ले रहे हैं एक्शन, तो सॉल्व नहीं हो सकती प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है, उसका सिंपल सॉल्यूशन है। जैसे हमने आज सिर्फ एक सॉल्यूशन की बात की, ग्रैटिट्यूड। तो आप पहली बात तो कोई मानने को तैयार नहीं हो, अच्छा, कुछ इतना सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है, थैंक यू, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हाँ, वो सोचते हैं कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन ही हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम का, सिंपल सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। सो दिस इज़ आल्सो टू बी एम्फसाइज्ड कि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन हो। सिंपल सी लाइफ थी, सिंपल से सॉल्यूशन है जो आपको करने हैं। लेकिन अब आप अपना माइंडसेट उसके हिसाब से चेंज करें तब होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और नीरज जी, टुडेज़ कन्वर्सेशन, आई मीन, दिस अलाइन्स सो डीपली विथ लिव वाबी साबी फिलॉसफी कि एम्ब्रेस द वाह! इम्परफेक्ट, द इनकम्प्लीट एंड एवर इवॉल्विंग जर्नी ऑफ लाइफ, हाँ, इंस्टेड ऑफ हाँ। वेटिंग फॉर एवरीथिंग टू बी परफेक्ट बिफोर वी फील, पीसफुल. हाँ, Because हाँ, हाँ। I mean, at Live Wabi Sabi, we truly believe that transformation doesn't demand perfection; it asks for presence. So, हाँ, one हाँ, हाँ। mindful step, one conscious choice, and one moment of gratitude at a time. So, thank you, Neeraji, वाह! so much for थैंक reminding यू us सो that मच। we can achieve whatever we want, not by escaping life's realities, but by evolving with them. So, thank you so much. हाँ, Anything else you want थैंक to यू। add? If you want to add the name of your books in the end, how can people connect with you? Please tell us. हाँ, थैंक यू शिल्पी, मुझे रिमाइंड कराने के लिए।
बुक्स तो हैं जो मैंने सबसे पहले लिखी थी, रिपल ऑफ वर्ड्स और पेरेंटिंग द पेरेंट। लेकिन रिपल ऑफ वर्ड्स का ऑडियो वीडियो वर्जन भी है, और एक कोर्स भी है, बेटर यू बेटर चाइल्ड। आई रियली So रिकमेंड दैट पीपल डू when इट। we finish our conversation, then please share the link in the comments so that if people who are watching, they are able to, check out your ओके। links. अच्छा, वो ना लिंक्स जैसे पुराने थे, इस बार हमें वो डोमेन नहीं मिला। सो इट इज Hmm. नॉट पेरेंटिंग द पेरेंट डॉट ओ आर जी, इट इज पेरेंटिंग द पेरेंट डॉट कॉम। तो Okay. अगर लोग उस पे देखेंगे तो सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको 10 बीमारियां होती हैं, आप महंगे से महंगा इलाज कराने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अमाउंट जो अपने पे खर्च करना है, अपनी बेटरमेंट के लिए, अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए, वो कोई खर्च करने को तैयार नहीं होता। सो आई रियली रिकमेंड कि वो थोड़ा-सा एफर्ट्स करें अपने आप को बेटर करने के लिए भी। कोई कोर्स चाहिए, कोई और कुछ चाहिए तो ज़रूर करें। Sure, sure, sure. Thank you, Neeraji, for this conversation. And this conversation is a reminder that parenting is not a role; it's practice of awareness, patience, and self-love. What I am taking away today from this conversation is when we heal ourselves, we heal generations. हाँ, When we slow down, children feel safe. And when we choose awareness over reaction, we not only raise confident children but conscious humans. To everyone listening out there, you don't have to be a perfect parent. You don't have to be a perfect person. You just have to be a present one. If this episode touched you, I invite you to sit with it, reflect, and maybe even start parenting yourself, more gently today. हाँ, Thank you, हाँ, Neha, for the हाँ। work you do and the wisdom you shared, and to our listeners of Live Wabi Sabi Life and Parenting the Parent, where we grow, heal, and evolve together. Until next time, stay gentle with yourself because that's where all the healing begins. Thank you so much, थैंक यू everyone. सो मच शिल्पी। हमने जो भी बात आज की, बस वो लोगों को अपने पे करनी है, बच्चों पे नहीं करनी है। पहले खुद ठीक हो जाओ, Okay, ऑटोमैटिकली द okay, चिल्ड्रन विल चेंज। okay, थैंक यू okay. So, शिल्पी। so, so start with yourself first before going to your children, right? Before हाँ, teaching हाँ, your हाँ। children, teach हाँ, हाँ। yourself. हाँ, Okay. हाँ, हाँ। Okay. Thank you so much, Sure. Neeraji. Thank you, Shilpi. Thank you for inviting me. Thank you so much.